का मतलब है कृतज्ञता, राइट? कृतज्ञता, राइट? कृतज्ञता जो है ये हर एक जीव का गुण है वैसे तो, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग। आप कोई भी जीव मात्र को ओब्लाइज करो तो दे फील ओब्लाइज टू यू। कृतज्ञता का मतलब कि फीलिंग ओब्लाइज, ठीक है ना? तो ये अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, और उसका शब्द है इनग्रेटिट्यूड शब्द, और हिंदी में कृतज्ञता है, कृतज्ञता बोलते हैं, गुजराती में कृतज्ञता बोलते हैं, और इसका विरोध है कृतज्ञता, ग जोड़ा है, राइट? तो कृतज्ञता के बारे में we will discuss certain things. So it is a divine quality. Because it is acknowledging mutual dependency. जब से हमारा जन्म होता है, जीवन जन्म से पहले, राइट, we are not dependent, we are not independent, we are mutual dependent on someone. पूरा जीवन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कोई आदमी ऐसे सोचता है कि मैं पूरा इंडिपेंडेंट हूँ, तो इट इज ओनली मिसअंडरस्टैंडिंग। नहीं, कोई भी काम, देखिए हमारी मीटिंग हो रही है, एक दूसरे के बिना नहीं हो सकती है। तो वो मेन पीपल आर वर्किंग लाइक दिस जूम सॉफ्टवेयर, पीपल दिस दैट, ठीक है ना? और हम इस वक्त अटेंड कर रहे हैं वो भी बिकॉज समवन हैज हेल्प्ड अस टू सिट हियर, ठीक है? किसी ने समय पर चाय दिया, किसी ने समय पर खाना दिया, एवरीथिंग। तो एनी एक्शन वी आर डिपेंडेंट ऑन सो मेनी फैक्टर्स, सो मेनी पीपल, बट इट्स रियलाइजेशन, it is a divine quality. It adds lot of flavor in our life, lot of flavor in the people surrounding us to in whom we come into contact, right? It creates a kind of aura. No, so many people are discussing things about aura. So aura is, right, these are the divine qualities which normally it will have create a aura of yourself, right? Or a mutual, say mutually it works, right? You'll find, and we experience that some people would like to work for them. For some people would less like to work for them. What is the reason? Actually they are same, say even with the change of a head in the organization, with some people you feel like working, with some people you feel like overworking, with some people you feel like underworking or restricted working. All these things are the inherent qualities, okay? So this is one of the very crucial thing the author of this book, Secrets of Holistic Living, has reflected, and we'll discuss about that. So it's a mutual acknowledging mutual dependency. Okay, is one thing. And the first and foremost dependency of everyone is on nature. It's silently working, right? But acknowledging that and realizing that is a very, very important, and it connects you with nature. And not acknowledging that, it disconnects you with nature. So that way it makes a difference. Okay. So, and going ahead, say innumerable people around and working remote, everything. Okay. So, like you see, it is seen in every divine person, act of gratitude. Ramchandra is the example, right? The great person, God himself, we can say, राइट? तो क्या बोलते हैं, जन्मभूमि का ऋण स्वीकार करते हैं। जब लंका का विजय करते हैं तो लंका तो स्वर्णमयी थी, अयोध्या तो स्वर्णमयी नहीं थी, फिर भी विजय के बाद, सीता जी की पुनः प्राप्ति के बाद क्या कहते हैं लक्ष्मण को? और जब विभीषण रिक्वेस्ट करता है कि आप यहाँ ठहर जाओ, हाँ, कहते अपि स्वर्णमयी लंका न मय लक्ष्मण रोचते, ये सुनने की है मुझे, हाँ, उसके पर कोई रुचि नहीं रहती है, क्योंकि जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि, क्योंकि अपनी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान। तो जो जन्मभूमि के प्रति और उनके जन्मभूमि के प्रति उनका जो कृतज्ञता का गुण है, दैट इज नेचुरली इट इज रिफ्लेक्टेड। तो हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा में भी ये चीज है जो हम नहीं गंवाना चाहिए एट एनी कॉस्ट।
say it starts with a very simple lesson. All our Upanishad and Vedic learning, Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atithi Devo Bhava. They are not obliged to us. We are obliged to them. Okay, but acknowledging that. Not only that, Sri Rangavatu ji says, परस्पर देवो भव. आप जिनको भी लाइफ में मिलते हो, एक दूसरे का आपको उपकार रहता ही, एक दूसरे से कुछ ना कुछ हम लोग सीखते ही रहते हैं और अपना केवल मिलने मात्र से भी परस्पर लाभ होता है. So whenever we are alone, whenever we must contemplate upon various episodes in life. कैसे हो सकता है? How to cultivate this? Okay. Then this can be done by thinking also. Like say for example, we can think about parents. Parents ने हमें कई बार ऐसे जो जिंदगी में मोड़ आता है, कोई टीचर्स है, कोई लोग है जिसने आपको मोड़ पर सावधान किया. ये राइट मोड़ पर किसी ने ब्रेक लगाई है, राइट मोड़ पर किसी ने एक्सीलेटर दिया है, जो भी चीज है कि जिससे आपका पूरा घटनाक्रम जीवन का बदल गया है, तो उनको याद करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता बस व्यक्त करनी, मतलब कि अंदर रखनी, समझनी चाहिए और जरूरत पड़े तो व्यक्त भी करनी चाहिए. सो नेक्स्ट स्लाइड प्रदीप भाई. सो विल गो वन बाय वन. सो देन फीलिंग ग्रेटफुल टू पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंड ऑफ बर्थ. प्रदीप भाई नेक्स्ट स्लाइड ले जाओ. So parents, we know that we must express our gratitude to parents for looking after us, right from childhood, our education, guiding us during our difficult times, playing crucial role during first 20 years of our life, right? And same way we continue to do for our generation, right? This is one thing. And you can see any great person, autobiography you read, he has started with his parents, right? Any autobiography, right from Mahatma Gandhi or Yogi Kathamrut and all those things, they have started with their parents, Dada Bhagwan, everyone, right? So they have remembered their parents with gratitude, and we should never despise. Okay, gratefulness to the land of our birth. That is also not without any cause, without any reason. So wherever we are born, that is also by nature there are certain rules and regulations. Okay, आप कहीं के भी हो, कभी अपनी जननी या जन्मभूमि बोलते हैं ना, अभी कोई भी हालत में हो, but we are acknowledged, say indebted to and obliged to these two things, right? Next, we'll see what it doesn't. We don't have gratitude. There are some results we'll have to face. Next slide, Pradeep. Then, as we discussed, it starts with nature first of all, throughout, right from your conception to death. Gratitude to nature for providing us free air. आप देखो पूरा वेद, चारों वेद है, तो नेचर की स्तुति से ही भरपूर है. आप कहीं देखना, राइट? मैंने तो पूरा पढ़ा नहीं है, मैं सुना जहां पर वो पूरी प्रकृति की स्तुति बहुत है उसमें. Gratitude to nature for providing. ऐसे भी देखें, सॉरी सर, कि ऐसे भी हम देखें तो तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा, बनियन ट्री, बरगद की, वड़ की पूजा, सबकी पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, तो ये सब प्रकृति की ही पूजा है. पूरे ग्रेटिट्यूड, राइट? पूरे हिंदुस्तान की, मैं हैदराबाद था तो वहां पर आमला का जो पेड़ है उसके नीचे दिया करते हैं, राइट? जी जी. हमारे जी जी. Hills, all is nature, flora, fauna, मतलब vast expanse of sky, sea, beauty of all this natural beauty. So we are indebted to them and enjoy Her Majesty. Okay, so this is, and see, let us take an example. Where you go for LFC, where do you go? You go to in search of nature. Okay, जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं कि ये तीनों के लिए आप जाते हो, क्योंकि आपका पूरा शरीर पंच महाभूत से बना है, और उसके पास आप जाओगे तब आपको आनंद आता है, राइट? आप दरिया के पास वैसे बैठो तो वहां से ऐसे आनंद आता है. तो वी आर ग्रेटफुल टू द नेचर, दिस इज वन थिंग. एंड एनीवेयर यू आर देयर, देखो, यू टेक विद एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन. आप कहीं भी हो, ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है, कहीं भी हो, राइट?
तो दैट इज नेचर। और उसके भी अगर रूल्स आप पढ़ो तो पता है, साइंस के टीचर उनको पता है कि गैस का भी कितना इतना बैलेंस रहता है नेचर में, राइट। वो तो अभी विषय नहीं है, मगर थोड़ा मैंने पढ़ा था कि आप ऑक्सीजन कमी होती है तो ऑक्सीजन का ही फ्लो उस तरफ आता है, राइट। लाइक दैट इट्स ए गैस वाइज सिस्टम सप्लाई होता है उसका, राइट। तो एक जगह पूरा ऑक्सीजन या एक जगह पूरा कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा नहीं हो जाता है, राइट। नहीं तो अहमदाबाद में अगर ये पूरा सिस्टम गैस वाइज नहीं होता, ओके, मूवमेंट का, तो पूरा अहमदाबाद के अंदर दिन रात को पूरा गैस गैस हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा स्प्रेड होता रहता है, नया ऑक्सीजन आता रहता है। इवन इफ इट इज मोर देन सप्लाई तो बाहर से आ जाता है, राइट। तो दिस इज हाउ दिस सेकंड थिंग इज ग्रेटिट्यूड टू नेचर। नेक्स्ट स्लाइड ले जो प्रदीप भाई। रिमेम्बरेंस, ओके। अब देखो कहीं भी देखो, कोई भी प्रेयर देखो, वो क्या है, याद करना है उसको। So, oh God, so this is an English prayer. I got it, and you can read it. It says, "Oh God, when I have food, help me to remember the hungry." Right? When I have work, help me to remember the jobless. When I have home, help me to remember those who have no home at all. When I am without pain, help me to remember those who suffer. Like that, right? There are so many people which you get, and so that this it's called empathy or sympathy kind of thing. And remembering help me to destroy my complacency. Okay, थोड़ी बोले थोड़ी एक तरह की जड़ता ही है कि दूसरे का मुझे क्या है, तो that's not a divine quality. कॉम्प्लेसेंसी है, किसी की पड़ी नहीं है, वो कॉम्प्लेसेंसी है। ओके, मैं मेरा ही देखूं। बिस्टीर माय कंपैशन, मेरे जो अंदर जो कंपैशन की भावना है, करुणा दया की भावना है, उसको आप जागृत करो। एंड बी कंसर्न्ड इनफ टू हेल्प बाय वर्ड एंड डीड दोज हु क्राई आउट फॉर व्हाट वी टेक फॉर ग्रांटेड। टेकिंग फॉर ग्रांटेड इज नथिंग बट एक सॉर्ट ऑफ इनग्रेटिट्यूड, ठीक है ना, क्योंकि हमें उसको पता ही नहीं, काइंड ऑफ इनसेंसिटिविटी कि हम लोग को एक याद नहीं आता है, राइट। तो धीरे धीरे ये सब दिस कैन बी कल्टिवेटेड। बोलते हैं कि उपवास का जो निशाद साहब पूछ रहे थे एक बार, उपवास का भी वन ऑफ द पर्पस ऑफ उपवास इज दिस कि भूख का दुख क्या है बताते हैं, राइट। वन ऑफ द that it depends, it creates an empathy. Next slide. Then gratefulness to friends. Suppose आपका कुछ भी है, फ्रेंड ही नहीं है, तो क्या करोगे? This time you will find. I have seen in my banking career so many people. But so friends, we should be grateful to them, huh? And they are the people who guide you. Okay, they will take care of your interest and tell you sometimes bitter things also. We should be even more grateful to those who have told you bitter things for in your own interest, right? And at the time of critical moments. Nowadays, yesterday we were talking. Nowadays there is a fashion that nobody tells unpalatable thing to anyone. Okay. घर में भी कोई किसी को अनपैलेटेबल थिंग कोई कहता नहीं है, तो वो गड्ढे में गिरता है तो भी कोई नहीं कहता है। अभी ये इट इज कंसिडर्ड एज ए मैनर, गुड मैनर्स, बट एक्चुअली इट क्रिएट्स सो मेनी इश्यूज इन योर लाइफ। देयर इज नोबडी हु टेल्स यू समथिंग अनपैलेटेबल टू इन योर ओन इंटरेस्ट। समथिंग इज हैपनिंग, वी आर गोइंग एस्ट्रे, कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई कहने वाला है, तो बहुत अच्छी चीज है। इफ यू हैव समवन, प्लीज प्रिजर्व देम, प्लीज वैल्यू देम। Okay, don't look to their words, look to their intentions for your good. Okay, and be grateful rather than. Gratitude should also be expressed to wife. Okay, which we forget to feel grateful to those who are very near to us. Okay, so for protecting us during our times of all our frustrations and all those things, we went out to her. Simply, she may not be able to help you, but still you went out, she went out, her feelings, her problems. Okay, but that is also there is a place to went out. Okay, and sometimes you get some guidance also from each other. So those things also, it's a gratitude, and we realize then when we don't have these things. Okay, this is the only thing. देखिए तैतरीय उपनिषद का सेंटेंस है, अन्नम न निंद्यात्, खाते वक्त। ओके,
तद व्रतम, वो ही व्रत है। देखिए, व्रत में सबसे बड़ा व्रत क्या कहा गया है? खाने की निंदा नहीं करना, राइट। प्राणो व अन्नम, क्योंकि प्राण अन्न से ही है, शरीर अन्न से बना है। तो तैत्तरीय उपनिषद कहते हैं मनुष्य को अन्न की निंदा, अवहेलना नहीं करनी चाहिए, यही व्रत है। अदरवाइज इट मेक्स ए डिफरेंस इन द डाइजेशन। ओके, आपको शरीर में उसका जो मिलना चाहिए वो नेगेटिव फोर्सेस भी हो सकता है, वॉट एवर यू इमेजिन। अभी एक रिसर्च चल रहा है कि जो अभी लोगों को वेट बढ़ जाने का डर है, कैलोरी का डर, राइट। तो इतना फोबिया हो गया है ड्यू टू सो मच ऑफ स्टडीज एंड सो मच ऑफ एडवर्टाइजिंग कि आदमी या औरत, जनरली औरत खाते खाते डरती रहती है कि इससे कैलोरी नहीं बढ़ जाए, ऐसा है वैसा है, एंड दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द फूड्स। ये फूड ऐसा है, ये फूड ज्यादा, फूड की निंदा मत करो, ये फूड जो है तुम्हें खाना है तो खाओ, निंदा मत करो। हर एक लोगों को हर एक टाइप की जरूरत है और आपको भी जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं जरूरत पड़े। तो अन्य ने एक इतना बड़ा मंत्र मुझे लगा। ओके, सच एक्शन शुड बी रिमेम्बर्ड विथ एफर्ट्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो प्रयत्न पूर्वक याद करना। ग्रेटफुलनेस ऐसी चीज है अभी मॉडर्न जमाने में कि भूल जाते हैं। आप देखिए रामचंद्र जी और हनुमान जी, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। 100 योजन मर्याद समुद्र की, कूद गयो क्षण माही। लंका जारी सिया सुधिलायो, पर गर्व नहीं मन माही। कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। शक्ति बाण लग्यो लक्ष्मण के, हाहाकार भयो दल माही। धौला गिरि कर धर ले आयो, घोर ना होने पाई। कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। अहि रावण ने भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को पाताल लोक में ले जाके बंद कर दिया था। ये हनुमान जी थे जो लेके आए। वो जो आपने देखा होगा ना कि हनुमान जी एक कांधे पे श्री राम को बैठाएं, एक कांधे पे लक्ष्मण जी को, ये वही समय है। अहि रावण की भुजा उखाड़ी, बैठ गयो मठ माही। अहि रावण की भुजा उखाड़ी, बैठी गयो मठ माही। जो भैया हनुमत नहीं होते, तो मोहे कोला तो जग माही। कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। आज्ञा भंग कबहू नहीं कीनी, जहां पठायु तहां जाई। तुलसीदास पवन सुत महिमा, प्रभु निज मुख करत बड़ाई। कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। ये पूरा पद है। अब कवि जसराज जी के मुंह से सुनना इतना अच्छा है,
तो जब रामचंद्र जी अयोध्या से आ गए, अरे श्रीलंका से अयोध्या गए, तो हनुमान जी उनके साथ थे वो प्लेन में पुष्पक। जब भरत जी से उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं रामचंद्र जी, तो इतना मधुर इंट्रोडक्शन है कि कृतज्ञता व्यक्त करते हैं रामचंद्र जी भरत के सामने हनुमान जी की, कि भरत के ऋण से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। भरत को कहते हैं कि हनुमान जी के ऋण से हम कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, फीलिंग ग्रेटफुल। देखिए, अम्यूनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कितनी सुविधाएं हैं, तो इसलिए हम लोग आप हमारे बचपन के आप समय देखिए कितनी असुविधाएं थी। अब इतनी सारी सुविधाएं हैं, पर सुविधा का मन में आनंद नहीं आता है। क्यों आनंद नहीं आता है? कि हम लोग वो पुरानी असुविधाएं भूल गए हैं, राइट। तो वी मस्ट बी ग्रेटफुल तो सुविधाओं के लिए, कि क्या देखिए जूम है, राइट, वी आर मीटिंग विच वॉज इम्पॉसिबल विदाउट दैट। अब जो जिसने बनाया चाइनीज हो या कोई भी हो, मत करो, जो साइंटिस्ट ने खोजा है, we must feel grateful that we are using their services. Okay, even we are that feeling, whatever amenity, to simply criticize the scientists, ना वैज्ञानिक कई लोग जो अध्यात्म में है, they forget this and they start criticizing the science and scientists. And at the same time, they are utilizing the science, the inventions made by science. अब ये लाइट है, ये सब हम लोग यूज कर रहे हैं, फिर उनकी निंदा कर रहे हैं. So what does that mean? Okay, so this is one thing. Whatever is good, you are enjoying and still criticizing it. Not, it is ungentlemanly rather. Okay, तो ये अच्छा नहीं है. तो grateful to the amenities infrastructure. कोई भी आप यूज कर रहे हो, you should feel it, right? And if it is thought doesn't come, just think about when it was not there. ठीक है ना? तो देखिए, जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो जब मैं पहली बार अहमदाबाद गया, मैंने ट्यूबलाइट पहली बार देखी जिंदगी में, तो मुझे पता चला कि अगर ऐसी ट्यूबलाइट मुझे मिल जाए तो मेरा तुम्हें फर्स्ट नंबर आ जाएगा। इतना सुना मुझे आनंद था। वो ट्यूबलाइट, हम तो 20 लड़के थे, हमारे एक रूम में 20 लोग डॉर्मिटरी में रहते थे। अहमदाबाद मेरा एडमिशन भी हो गया, और लाइट के लिए पढ़ने का मिला मुझे 10th स्टैंडर्ड में सबसे पहले, राइट। तो मैंने कहा कि ये लाइट एकदम मेरा अहमदाबाद में भी फर्स्ट नंबर आ जाएगा, ऐसा मुझे इतना एहसास हो रहा, वो आ भी गया, देखो। ओके, सो लाइक दैट अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट वी आर हैविंग सो मेनी फैसिलिटीज। से देखिए, पाइप्ड वाटर, पाइप में पानी आता है, बेसिन में पानी आता है, जब नहीं आता है तब पता चलता है। इट सेव सो मच ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी, राइट। हाँ, ड्रेनेज सिस्टम, स्मोक फ्री कुकिंग। ओके, अभी हमारे गांव में भी सीएनजी गैस है, that is doing wonders. Refrigerators, air conditioners, telephones, TV, car, office automation, internet, then system of education। देखिए ये जो हो रही है अभी, everything has originated from waste. ओके, जो साइंटिस्ट मेजोरिटी जो अभी जो एम्यूनिटीज है, कई साइंटिस्ट वेस्ट के हैं, तो why should we criticize them? We are using their services, but spend lives in those inventions. Must pray for their well-being also, or at least we should not criticize. Better to free of life. Our goodwill must go to them. Okay, next slide, Pradeep bhai. नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ग्रेटफुलनेस टू कलीग्स, पुअर्स एंड हेल्प। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, ओके, आप जितने ऊपर जाओगे उतने ज्यादा कलीग होगे, राइट, ज्यादा स्टाफ होगा। अब उनके बिना आपको, आप कोई भी जगह पर, इफ यू आर हेडिंग सम ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है, इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी पीपल, और उसका क्रेडिट किसको मिलता है? आपको मिलता है। एंड यू, दैट्स व्हाई ग्रेटफुलनेस टू कलीग्स, peers, superiors. Why? You are spending almost more than equal times. जो आपके फैमिली के साथ आप जो टाइम स्पेंड करते हो, उससे ज्यादा टाइम यू आर अवेक, ठीक है ना। आप जगते हुए जितना टाइम पसार करते हो, फैमिली से ज्यादा इन लोगों के साथ पसार करते हो, तो उनसे भी, एंड दे आर वर्किंग इन योर नेम, दे आर हेल्पिंग यू, एंड इफ यू हेल्प, दे विल हेल्प यू लाइक दैट। तो कलीग्स, पीयर्स, सुपीरियर्स आल्सो, दे गाइड यू। ओके, सबऑर्डिनेट्स आल्सो, आपका काम नहीं तो जल्दी नहीं होगा, जब नहीं आता है तो पता चलता है आपको, तो दे विल सर्च फॉर यू। ओके, देन
कोई भी प्रोफेशनल लाइफ, डॉक्टर है तो नर्स नहीं होगी तो डॉक्टर क्या काम करेगा, राइट। तो एवरीवेयर आप कोई भी, मानिए कि एक सर्जन है तो उसके नर्स, जो सर्जरी के दौरान जो नर्स लोग काम करती है, आप देखना इतना स्विफ्टली काम करते हैं लोग, क्योंकि एक आदमी का शरीर खोला गया और कितने लोग उस डॉक्टर के गिर्द फटाफट जो बोलता है चीजें देते रहते हैं और ऑपरेशन हो रहा है। सो that is like everywhere it is there. Okay, that is a one thing. Then feeling grateful to the poor people also, because they give you a chance to make you feel worthy, that you are worthy of giving something. Okay, दो हमारे वो previous session में हो गया था. Okay, तिरस्कार नहीं. Just imagine a life with no opportunity to do any act of charity, that we have discussed already, right? तो इससे क्या होता है, आपको किसी को भी देने का, आपके पास कोई कुछ भी मांगता नहीं है, हेल्प नहीं मांगता है, पैसा नहीं मांगता है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल फेस और यू विल फील ए सेंस ऑफ डिप्रेशन। अभी जो डिप्रेशन इतना ज्यादा है, वन ऑफ द क्रूशियल रीजन फॉर दिस इज दैट द पीपल डोंट हैव द चांस, और इफ दे हैव द चांस दे डोंट एक्सरसाइज दैट चांस टू हेल्प समवन। ओके, बाय हेल्पिंग द पीपल आल्सो योर ओन डिप्रेशन कम्स डाउन। नेक्स्ट, ग्रेटफुल टू कस्टमर्स, राइट। देखिए महात्मा गांधी, he has written these lines if you have read, give gratefulness to customer, whatever business you are doing, okay, you are doing for someone। अब कस्टमर ही नहीं है, आप स्कूल चलाते हो और जो पेरेंट्स आर योर कस्टमर्स, ओके, वो आपको यहाँ बच्चे नहीं भेजते तो आपको क्या, आप क्या करोगे? कोई भी बिजनेस है डिपेंड्स अपॉन कस्टमर्स, राइट। कस्टमर्स कॉमर्शियल सेंस में केवल नहीं, एक मंदिर के पुजारी है तो उसके लिए जो लोग मंदिर में आते हैं वो कस्टमर्स है। ओके, तो कस्टमर, दिस इज अ वंडरफुल सेंटेंस। इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वी आर टोल्ड टू put this board in every branch. One of our boss told us all branches he painted this, and it reminded, okay, a customer is the most important visitor to on our premises. This we have to remember. He is not dependent on us because he has multiple avenues. कहीं भी जा सकता है, कोई भी दुकान में जा सकता है, आपके यहाँ आया क्यों आया? We are dependent on him. He is not an interruption of our work. He is the purpose of it. देखिए, आप कस्टमर ज्यादा आ जाते हैं तो हमें इंटरप्शन लगता है, एक्चुअली बात ये नहीं है। सो ही इज द पर्पस ऑफ इट। ही इज नॉट एन आउटसाइडर ऑफ बिजनेस, आवर बिजनेस, ही इज पार्ट ऑफ इट। ओके, वी आर नॉट डूइंग हिम ए फेवर बाय सर्विंग हिम, ही इज डूइंग अस ए फेवर बाय गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू डू सो। इफ दिस इज द इम्बाइब, ये अगर पूरा समझ लिया जाए तो आप जहां भी हो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, लोगों को आनंद भी होगा, आप भी लोगों से मिलने में आनंद अनुभव करेंगे और वो लोग भी आपको मिलने में आनंद अनुभव करेंगे और दूसरी बार उनको आने का मन करेगा, क्योंकि आपका अप्रोच बदल गया है। दिस इज रियलिस्टिक अप्रोच। कोई गांधी जी हिमसेल्फ वाज ए बिजनेसमैन, बनिया थे वो, उनको पता था क्या है कस्टमर, एंड इतना अच्छा लिखा है कि आई लाइक इट सो मच, सो आई थॉट आई विल शेयर विथ यू। नेक्स्ट स्लाइड प्रदीप भाई। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू गाइड्स। सबसे ये भी एक बहुत बड़ा जो हमें प्रीवियस पे चला, गाइड वाले, आगे वाले, रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड ओवर गाइड्स है ना, पहला नहीं प्रदीप भाई। है ना, हमारे ત્યાં ये सिस्टम ही है कि जिसने आपको गाइड किया है, राइट, वो गुरु है, शिक्षक है, अध्यात्म में गाइड ये किया है। हाँ, तो देखिए माता गुरु, पिता गुरु, गुरु ज्येष्ठ बंधवा, देखिए अपना बड़ा भाई वो भी गुरु है, क्योंकि उससे हम जब छोटे थे आपको किसने सिखाया है? लोगों ने हमें बोलना सिखाया है, चलना सिखाया है। हाँ, सब कुछ हर एक स्टेज पर गुरु बदलते रहते हैं, तो विच इज वेरी कॉमन इंडियन प्रैक्टिस में नमस्कार है। ओके, तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी शुड कन्वे अवर ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज डिवाइन पर्सन्स एंड गॉडली पर्सन्स हु हेल्प अस टू एक्सपीरियंस ए हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है ना, इसलिए जो हमारा प्रख्यात श्लोक भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ही सब कुछ है। तो गुरु डजंट मीन ओनली वन पर्सन, देयर आर मल्टीपल गुरुज ऑलवेज कमिंग एट एप्रोप्रिएट टाइम्स इन आवर लाइफ एंड गाइडिंग। नेक्स्ट प्रदीप भाई, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ,
ग्रेटफुलनेस टू टर्निंग पॉइंट इंसिडेंट, इंसिडेंट के लिए भी देखिए कई बार ऐसे इंसिडेंट आ जाते हैं, हर एक के जीवन में आते हैं। जैसे आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो या सिटी में चला रहे हो, हर एक जगह बम्प आते रहते हैं, राइट। ये तो बगैर जहां पर बम्प है दैट मीन्स देयर इज सम रिस्क। बम्प नहीं होता देन देयर वुड बी एक्सीडेंट, ओके। So wherever in life also we have incidents of sickness, loss of wealth, many painful experience, but instead of having bitterness and cursing someone for that, let us be grateful, and you will find after that incident there is a curve, a mode, good mode in your life, okay. So that is also cursing. There is no, it is better to thank them. And if you think in long run, you will find that definitely such event was a turning point in your life. Then he says, suppose British people, we curse British people so much. Okay, now they are gone. Whatever has happened. So if we should even be grateful to the British people for the gift of, because you will find anything good in anything bad. ओके, सो फॉर द गिफ्ट ऑफ, क्योंकि जो जैसे हमने एक्सेप्टेंस के चैप्टर में देख, जो हो गया उसकी आप चिंता मत करो, ओके, उसके लिए डोंट हैव नेगेटिव फीलिंग। सो ही सेज, ऑथर सेज, द गिफ्ट ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज। सपोज ये हम लोग क्या कौन किसकी लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं और आप किसकी लैंग्वेज सुन रहे हो, राइट। तो दैट हैज बिकम ए रीजन फॉर अवर कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो वो लैंग्वेज तो लोग दे गए, और बाद में आपको पता है कि जब आईटी का डेवलपमेंट हुआ 90 के बाद, तो इंडिया वाज रूलिंग द वर्ल्ड बिकॉज इंडियन पीपल, देयर आर मोर इंडियन पीपल नोइंग इंग्लिश देन ब्रिटिश देमसेल्व्स, ठीक है ना। इंग्लिश बोलने वालों की ज्यादा संख्या है अभी इंडिया में, ब्रिटेन में नहीं है, राइट। तो ये सब चीजें हैं। इवन आप कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाओ तो आपकी लैंग्वेज बिल्कुल अच्छी तरह से इंडियन लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो लाइक दैट वी कैन यूज इट इन आवर कम्युनिकेशन। रीडिंग, आप कोई भी फटाफट इंग्लिश बुक पढ़ सकते हो। सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू देखो, राइट, पीनल कोड, रेलवेज, पुलिस, ओके। ये जो सिस्टम आप उनका देखा अगर तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लगाई है, जुडिशियरी, बैंकिंग, ऑर्गेनाइज आर्मी, पोस्ट, बैंक, इवन स्टेट बैंक, इट वाज ए ब्रिटिश बैंक, so they have made the system, so we can feel them, feel the gratefulness, not for ruling us but for some certain thing which we are enjoying nowadays, right? They say that in the initial 50 years after independence, इंडिया में 5000 किलोमीटर रेलवे लाइन हुई थी पहले 50 साल में इंडिपेंडेंस के। जो ब्रिटिश गए तब तक 50,000 किलोमीटर थे, देखो, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्योंकि बिकॉज दिट वाज मोनार्की थी, तो लोग बस उसको जहां रेलवे लाइन डाल दी थी डाल दिया, नो आंदोलन, नथिंग, ओके। आप कहीं भी जाओ सिटी में, बॉम्बे सेंट्रल की आप जगह देखो, कितनी जगह एक्वायर किया है। अभी ये उसको 1000 मीटर भी एक्वायर नहीं हो सकती है। दे हैव प्लान्ड 100 और 200 ईयर। हैदराबाद देखो, सिकंदराबाद देखो, बड़े बड़े सिटी देखो। हाँ, so applied spirituality, we are discussing, this session is on applied spirituality. So gratitude is the principal parameter of applied spirituality. It's a kind of spiritual. It is not a gratitude, it's a mechanical conversation kind of thing. So may not say, author is telling us not to say thank you, sorry, but we should feel that you are really thinking. It conveys, okay. When you have a feeling of gratitude, it conveys in your words, okay, like that. Then it is one of the principal parameters of applied spirituality, and uske liye it requires thinking, okay. Next slide, Pradip, next slide lo. Next. Conveying gratitude before going to sleep, correct? Right time. हर एक दिन में, रात में सोने के समय 5 मिनट निकाल के, when we go to bed every night, we must recollect something good which has happened, and जिसका प्रति आभार व्यक्त करना है कि ये वर्ल्ड इज लाइक ए टेलीफोन, ओके। तो वो सब हो सकता है, म्यूजिक, गुड ऑर्डर, पेमेंट, ओके, व्हाटएवर good things, okay, you have enjoyed,
thank God, thank nature, or thank that particular person. It reaches him. So, okay, next. कोई भी अगर आपको रिकवरी का काम है तो रिकवरी के लिए भी किसने दिया तो आप उसका थैंक्स मांगो. ओके, लाइक दैट. फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड इज डेवलपमेंट of sensitivity to nature. This we have discussed and people around. Okay. So this is one thing, and if it doesn't come to it, it shows a lower development. It comes by thinking. Okay. Next. जिंदगी में कहीं भी पेनफुल एक्सपीरियंस है, दैट इज ऑल्सो ए प्रिकर्सर ऑफ गुड थिंग. कोई भी बाद में अच्छी आने वाली, इसलिए वो पेनफुल एक्सपीरियंस. लाइक बोलते हैं कि से प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद आप हो रहे, आपने कभी लेखन का काम किया हो तो आपको पता होगा. आप कोई काव्य लिख रहे हो, आप कोई लेख लिख रहे हो तो पता चलता है अंदर कुछ दर्द हो रहा है. सपोज दिस सेशन इफ आई एम प्रिपेयरिंग, 2-3 दिन मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ दर्द होता रहता है. Okay, that it is not a dard actually. It is a preparation kind of thing. How should I convey these final topics? Okay, so ultimately it leads to a good results. So like that, sometimes what we think painful is not painful. It is a creation process. It's a kind of creativity. Then, so it is a prerequisite to peaceful, okay, peace, spiritual development and depth of life. Like that, it brings peace. It cannot be experienced by those who have not depth and seriousness in life, and it shows the development of अंतस्करण. अपना अंतस्करण कितना समृद्ध है उसके हिसाब से, तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से हमारा अंतस्करण समृद्ध होता है और चेतना का विकास होता है. कृतज्ञता દાદા ભગવાન શું કહે છે કે અમને કોઈ ચા પાઈ હોય તો કદી ભૂલીએ નહીં. કોઈ ખાલી ચા પાઈ હોય તો પણ અમે ભૂલતા નથી. મા બાપ અને ગુરુનો ઉપકાર કદી ભૂલવો ન જોઈએ. These are what? This is what Dada Bhagwan also said. I tell you one incident. Okay, when I was in Hyderabad, एक सेठ थे, उनके वहाँ के कनु दादाजी जो अभी is no more now, तो वो ठहरे हुए थे. एक नाइट ठहरे हो, दूसरे दिन वो निकले, तो मेरे घर आने वाला है. तो निकलते वक्त उन्होंने जो काम वाली बाई को ही गेव टिप्स, 50 रुपया कुछ दिया. तो मैंने सोचा कि ऐसा तो मुझे तो पता ही नहीं था. देखिए, दिस आर काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड. काम वाली बाई है तो दिस ग्रेट पीपल दे थिंक अगर मैं आया हूं तो उसको 2-3 कपड़े ज्यादा धोने पड़े, थोड़ा ज्यादा खाना बनाना पड़ा, तो दे फील लो. तो लाइक दैट दे कन्वे ऑल्सो, नॉट मियरली. उसको आशीर्वाद भी दिया और पैसा भी दिया. ओके, लाइक दैट. The small things are that which we can learn from these great people. Next slide, Pradeep bhai. Next. तो थैंकलेसनेस से उल्टा क्या है? जो अभी आपको अगर ये सब नहीं है तो इट इज थैंकलेसनेस और इनग्रेटिट्यूड. वो इसमें क्या है, उसका ड्यूटी था, उसने किया है. लाइक दैट, अकृतज्ञता. कृतज्ञता और कृतज्ञता तो दूसरा है. कृतज्ञता वो तो इट इज नेगेटिव क्वालिटी एक्चुअली. वो एब्सेंस ऑफ क्वालिटी है, तो नेगेटिव है कि काम हो गया फिर आपकी कोई मुझे जरूरत नहीं. लाइक दैट, जस्ट फॉरगेटिंग इट एंड इग्नोरिंग. लाइक दैट पीपल जनरली रियलाइज वैल्यू ऑफ अदर पर्सन, रिलेटिव्स इन द एब्सेंस. जब वो नहीं होते तब आपको पता चलता है. तो ग्रेटिट्यूड, जो इनग्रेटिट्यूड, टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड इज द बिगेस्ट हर्डल इन प्रेजेंट टाइम्स. बिकॉज ये जो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि सेल्फ सेंटर्डनेस है, अपना अपना काम निकाल देना. ओके, आप देखना अपना काम आप निकाल सकते हो, बट इन ए लॉन्ग रन दिस इज नॉट पॉसिबल. आप 5 साल का आसार निकालो, क्योंकि आप कितने लोगों को फास्ट फ्रेंडशिप करके काम निकालो, बाद में सबको पता चलेगा कि आदमी मतलबी है, सेल्फिश है, तो कोई आपका काम नहीं करने वाला है. तो दिस इज हाउ द पीपल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम. इट लीड्स टू सीरीज ऑफ सफरिंग्स. आपको सफरिंग क्यों होंगे? क्योंकि पीपल विल स्टॉप हेल्पिंग यू. हर्डल होंगे, ट्रबल्स होंगे, अंतराय भी होते हैं इससे. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हमारे एक दोस्त है, हमारे शुक्ला जी है, हमारे वन ऑफ द ट्रस्टीज, ही एक्सप्लेन्ड मी.
कि जो ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम में जो लोग पेरेंट्स को भेज देते हैं, ओके, तो क्या है, मुझे पेरेंट्स की जरूरत नहीं है. दिस इज द एटीट्यूड, बिकॉज नाउ आई एम 50 years old, 45 years old, आई नीड नो पेरेंट, दे आर लोड टू मी, और उनको भेज दिया, राइट. तो उसका फल क्या आता है? इट इज इनग्रेटिट्यूड, वो तो कृतज्ञता हो गई, राइट. तो नेचर डजंट गिव देम पेरेंट्स इन द नेक्स्ट बर्थ. ओके, तो ही सेड्स और ओल्ड एज एंड ऑर्फनेज आर कनेक्टेड. आपको पेरेंट नहीं चाहिए तो नेचर बोलते ठीक है यार, तुम बिना पेरेंट के, आपको पेरेंट तो मिलेंगे, फिर आपको पेरेंट रहेंगे नहीं आपके साथ, राइट. तो यू विल गो टू ऑर्फनेज. तो दीज आर द वेरी सीवियर पनिशमेंट्स. द नेचर इज ऑलवेज इन बैलेंस. ओके, तो अंतरा है, इसको बोलते हैं कि आप कुछ भी चीज का आप उसको ग्रेटिट्यूड नहीं है और उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो, तो नेक्स्ट टाइम नेचर विल नॉट गिव दैट टू यू. You don't require it and you don't value it. So like that is a very, very important things. Next slide, Pradeep. So एंड हो गया. This first session on gratitude, right? So anybody want to talk about this gratitude or ingratitude? Else we'll move to the next session.